Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most merciful and the beneficent. Assalamu alaikum, my dear students. Today our discussion topic is about chapter number 2, a dialogue. But before discussion, don't forget to like, comment, share and subscribe this channel. Let's start our discussion. Okay students, it is your unit number 2, chapter number 2, a dialogue. What are the learning outcomes? यानी कि after learning these should be your outcomes. ये outcomes आपके होने चाहिए. After completing this lesson, the students will be able to use and understand present perfect tense, use has and have, write a note of thanks, make sentences, use adverbs, demonstrate the use of collective noun. Okay, students, in this whole chapter we will use present perfect tense. What is present perfect tense? In which you will see the completion of work in the present form. In present perfect tense we use third form of verb. In all perfect tenses we use third form of verb, but there are some changings of helping verbs. In this chapter we are discussing about present perfect tense. What is the formula of doing present perfect tense? First of all, subject, then has or have, then third form of verb, then object, then full stop. And what is the identification in Urdu sentences? फिक्रे के आखिर में कर चुका है, कर चुकी हैं, कर चुके हैं, कर लिया है, कर लिए हैं वगैरह आते हैं. ठीक है, जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको सेंटेंसेस में ऐसे जो है वर्ड्स नज़र आएंगे जो हमें बताएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ठीक है, अब मैंने आपको सिंपल सेंटेंस का बनाने का मेथड बता दिया. सब्जेक्ट हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. We will use has with he, she, it with singular noun, and have we will use with I, we, they, you plus plural nouns. Okay, in negative sentences, first of all we will use subject, then has not or have not, then third form of verb, then object, then full stop. Okay, just like he has eaten food, it is simple sentence. And in the negative form, in negative sentence, he has not eaten food. They have played cricket, it is simple sentence. And what is the negative sentence? They haven't played cricket. Okay, now come to the interrogative sentences. First of all we will use has or have, then subject, then third form of verb, then object, then in the end we will put question mark. Okay, they have eaten food or they have played cricket. What is the interrogative sentence of this? Have they played cricket? Have they eaten food? She has watched TV. What is interrogative sentence? Has she watched TV? In the end we will put question mark. Okay students, I think so इतनी जो है डिस्कशन काफ़ी है इस चीज़ के बारे में कि आपको टेंस की समझ आ गई होगी. ठीक है, जब हम ग्रामर करेंगे तो जब टेंसेस करेंगे तो हम कंप्लीट टेंस सीखेंगे. अब इस चैप्टर नंबर 2 में
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हो रहा था, तो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। अब सेकंड वन है यहाँ पे एडवर्ब्स। वो एडवर्ब्स क्या हैं? जो हमें वर्ब के बारे में बताते हैं या हमें सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, इसकी काफ़ी टाइप्स हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन समटाइम एंड पे हम ly लगाते हैं, जैसे ही राइड्स स्लोली, बट इन अदर केसेस जस्ट लाइक शी वेंट देयर। देयर जो है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट के बाद या किसी चीज़ के बाद जो है वो ly आएगा तो एडवर्ब है। ठीक है, चलें स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। और एक और भी है, डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ कलेक्टिव नाउन। आपको कलेक्टिव नाउन का तो पता ही होगा कि अब अगर बहुत सी चीज़ें हों तो हम उनको कलेक्ट करके एक नाम दे देते हैं। जैसे कि लोगों का, जो इंसानों का हजूम है उनको हम पीपल कहते हैं। ठीक है, ये जो इसके अलावा फ्लीट कहते हैं, वो जो शिप्स का जो ज़्यादा हों तो उनको हम फ्लीट कहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ I will tell you about the introduction of unit number 2. That one is dialogue. Dialogue is about the conversation between Qasim and his uncle. This whole chapter we will discuss both conversation. First of all, you should know what is a dialogue. A dialogue is a conversation between two persons. जो डायलॉग होता है वो दो लोगों की बातचीत को कहते हैं, बट समटाइम्स अ डायलॉग कैन बी अमंग 3, 4, 6 persons. Okay, it doesn't compulsory for a dialogue between 2 person. यानी कि जो डायलॉग होता है उसमें कम से कम 2 अफराद होते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई 2 शख्स बात कर रहे हो तो वो डायलॉग होगा। ठीक है, अगर कोई एक शख्स अकेले में बात कर रहा होगा तो उसको बोलते हैं सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है खुद कलामी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट है ये कासिम और इसके अंकल के बारे में है, और जिसमें कासिम जो है वो दुबई से वापस आया है, सऊदी अरब से वापस आया है, और इसका स्कूल अभी तक रिसेंटली ही खुला है। लेकिन उसके चचा जो हैं उससे पूछ रहे हैं कि आप सऊदी अरब क्या करने गए थे। ओके, और फिर उनसे उनकी एजुकेशन के बारे में पूछते हैं, स्टडीज़ के बारे में पूछते हैं, क्लासेस के बारे में पूछते हैं कि कहाँ से वो पढ़ रहा है, उसका कौन सा जो है सब्जेक्ट उसको टफ़ लगता है या कौन से सब्जेक्ट पे उसकी ग्रिप है। इसके अलावा वो उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी पूछते हैं चचा जान कासिम से कि फ्यूचर में क्या बनने का उनका इरादा है। ये सारा चैप्टर जो है कह लें कि चचा और भतीजे के दरमियान है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स को पूछता है कि आप इतनी देर कहाँ रहे हो। जो कासिम के जो वालिदैन थे वो स्टूडेंट्स सऊदी अरब में रहते थे, उसके फादर उधर ही काम करते थे और उसकी मदर भी वहीं पर थी। तो उसकी मदर जो थी बीमार थी, तो इसलिए वो सऊदी अरब गया हुआ था। ठीक है, वेयर हैव यू बीन कासिम? कासिम तुम कहाँ रहे हो? वी हैव मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हम काफ़ी अरसे के बाद मिले हैं। कासिम, आई हैव बीन टू सऊदी अरब।
मैं सऊदी अरब रहा हूँ अंकल चचा जान। एंड आई हैव जस्ट कम बैक, और अभी मैं वापस आया हूँ। जस्ट का मीनिंग होता है अभी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि वर्ड को आपने 3 चीज़ों से देखते हैं, उसका मीनिंग, सेंस और पोजीशन कहाँ है। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा इस तरीके से होगा, मैं सऊदी अरब रहा हूँ चचा जान, और मैं अभी वापस आया हूँ अंकल। Why did you go to सऊदी अरेबिया? तुम सऊदी अरब क्या करने गए, क्यों गए थे? Why का मीनिंग होता है क्यों। तुम सऊदी अरब क्यों गए थे? कासिम, you know father is doing a job there, क्योंकि आप जानते हैं कि वालिद साहब वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। एंड मदर इज़ देयर टू, और वालिदा भी वहाँ हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टेंस इस्तेमाल हो रहा है, कहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो रहा है, कभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ है, लेकिन जो हमने आउटलाइंस पे पढ़ा था उन्होंने कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादातर इस्तेमाल आप देखेंगे जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, जिसमें हम हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। देखिए, आई वेंट टू सी देम, मैं उनसे मिलने गया था। सी का वैसे मीनिंग होता है देखना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी सेंस बन रही है उसके मुताबिक मिलने गया था। पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर मदर, वालिदा से। बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वो बीमार थी। अब स्टूडेंट्स, इसका बामुहावरा तर्जुमा इस तरीके से होगा, आप जानती हैं अब्बू जान वहाँ मुलाजमत कर रहे हैं और अम्मी जान भी वहाँ हैं। मैं उनसे मिलने गया था, ख़ास तौर पर अम्मी जान से, क्योंकि वो बीमार थीं। अंकल चचा जान, आई एम सॉरी टू हेयर डैट, मुझे ये सुनकर दुख हुआ। हाउ इज़ शी नाउ, अब वो कैसी हैं? कासिम, शी इज़ फाइन, वो अब ठीक हैं। अंकल चचा जान, थैंक यू, आपका शुक्रिया। बामुहावरा तर्जुमा इस तरह से होगा स्टूडेंट्स, वो ठीक हैं चचा जान, आपका शुक्रिया। शी हैज़ नाउ फुली रिकवर्ड, रिकवर्ड का मीनिंग होता है सेहतयाब होना। फुली का मीनिंग होता है मुकम्मल तौर पर। स्टूडेंट्स, अब आप देखें, हैज़ के बाद जो है नाउ फुली आ रहा है, फिर उसके बाद रिकवर्ड आ रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल कहते हैं, ठीक है। अब वो मुकम्मल सेहतयाब हो चुकी हैं। अंकल चचा जान, योर स्कूल, आई हेयर, मैंने सुना है, हैज़ जस्ट, अभी, जस्ट का मीनिंग होता है सिर्फ, लेकिन यहाँ पर वर्ड की सेंस के मुताबिक देखें तो वो है सिर्फ। रीओपन्ड, दोबारा खुला है। आफ्टर वेकेशन, वेकेशन कहते हैं छुट्टियों के बाद। एंड आई डोंट थिंक, और मेरा नहीं ख्याल, यू हैव मिस्ड मच, मच का मीनिंग होता है ज़्यादा, मेरा नहीं ख्याल तुम्हारा ज़्यादा काम रह गया है। स्टूडेंट्स, इसका बामुहावरा तर्जुमा इस तरीके से होगा, मैंने सुना है तुम्हारा स्कूल छुट्टियों के बाद अभी खुला है, और मेरा नहीं ख्याल तुम्हारा ज़्यादा काम रह गया है। आई थिंक, मेरा ख्याल है, विथ जस्ट अ लिटिल, थोड़ी सी एक्स्ट्रा, ज़्यादा, एफर्ट, कोशिश, मेरा ख्याल है या मैं सोचता हूँ कि थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत के ज़रिए के साथ यू कुड ईज़िली, आप कर सकते हो, मेकअप, कवर, यानी कि डेफिशिएंसी कहते हैं स्टूडेंट्स कमी को, इन योर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई में। बामुहावरा तर्जुमा स्टूडेंट्स इसका इस तरीके से होगा, और मैंने सुना है
तुम्हारा स्कूल छुट्टियों के बाद अभी खुला है और मेरा नहीं ख्याल तुम्हारा ज़्यादा काम रह गया है। मैं समझता हूँ या मेरा ख्याल है सिर्फ थोड़ी सी इजाफी कोशिश से तुम पढ़ाई में अपनी कमी को आसानी से पूरा कर सकते हो। ठीक है, अब ये मैंने पैराग्राफ का तर्जमा कर दिया को बा महावरा में। और आपने यहाँ पे देखा होगा कि हैव के बाद जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रही है। ज़्यादातर सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और अब आगे चलते हैं। कासिम नो अंकल, नहीं चचा जान। आई हैव सर्टनली मिस्ड मैनी इंपॉर्टेंट लेसन्स। सर्टनली यकीनन, मिस्ड छोड़ दिए हैं, मैनी बहुत ज़्यादा, इम्पोर्टेंट अहम, लेसन्स असबाक मैंने हकीकत में यकीनन बहुत से अहम असबाक छोड़ दिए हैं। एंड आई नो, और मैं जानता हूँ, आई विल हैव टू वर्क प्रिटी हार्ड। प्रिटी हार्ड यहाँ पे इडियम है बेटा, फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है सख्त मेहनत करना। ठीक है, तो ऐसे प्रिटी का मीनिंग होता है खूबसूरत, हार्ड का मीनिंग होता है सख्त, लेकिन यहाँ पर जो सेंस दे रहा है उसके मुताबिक है सख्त मेहनत करना। अब स्टूडेंट्स हम बा मुहावरा तर्जुमा करेंगे। नहीं चचा जान, मेरे यकीनन कई अहम इसबाक रह गए हैं और मैं जानता हूँ मुझे खासी मेहनत करनी पड़ेगी। आई एम ग्लैड। अब यहाँ पे पिछला देखें, आई विल मैंने बोला, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, इसको बोलते हैं आइल। ठीक है, वैसे जो है आई विल बोलते हैं, अब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आई है तो हम आइल बोलेंगे। अब आगे आई एम को ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखी हुई है तो हम आई एम बोलेंगे। आई एम ग्लैड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग सो। मैंने पहले ही से ऐसा करना शुरू कर दिया है। बा मुहावरा तर्जुमा इसका इस तरीके से होगा, मैं खुश हूँ कि मैंने पहले ही से ऐसा करना शुरू कर दिया है। आई हैव स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दी हैं, अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली। रेगुलरली कहते हैं बाकायदगी से, मैंने बाकायदगी से जमातें लेना शुरू कर दी हैं। एंड माई ब्रदर, और मेरा भाई, हैज़ स्टार्टेड, उसने भी शुरू कर दी है, हेल्पिंग मी टू, मेरी मदद करना। यानी कि स्टूडेंट्स जो उसके इसबाक रह गए थे, एक तो उसने बाकायदा जमातें क्लासें जो हैं वो अटेंड कर रहा है, और जो रह गए हैं इसबाक उसके लिए उसने अपने बड़े भाई से मदद लेना शुरू कर दी है। वो उनसे भी क्या ले रहा है, कोचिंग दे रहा है। ठीक है, बा मुहावरा तर्जुमा स्टूडेंट्स इसका इस तरीके से होगा, मैं खुश हूँ कि मैंने पहले ही से ऐसा करना शुरू कर दिया है। मैंने क्लासों में बाकायदगी से जाना शुरू कर दिया है और मेरे भाई ने भी मेरी मदद करना शुरू कर दी है। अंकल, व्हेन आर योर एग्ज़ाम्स स्टार्टिंग? कासिम, तुम्हारे इम्तहानात कब हो रहे हैं? कासिम, माई एग्ज़ाम्स, मेरे इम्तहानात, आर नॉट टू फार। फार का मीनिंग होता है दूर। मेरे इम्तहानात ज़्यादा दूर नहीं हैं। दैट्स वाई, इसीलिए, इसी वजह से। आई हैव कम बैक, अब देखें हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया, इसीलिए मैं सऊदी अरब से वापस आ गया हूँ। आई नेवर वॉन्टेड टू मिस माई एग्ज़ाम्स। मैं नेवर कभी नहीं, वॉन्टेड चाहता था, टू मिस छोड़ देना, माई एग्ज़ाम्स
मेरे इम्तहानात। अब स्टूडेंट्स इसका बामुहावरा तर्जुमा इस तरीके से होगा, मेरे इम्तहानात ज़्यादा दूर नहीं हैं, इसीलिए मैं सऊदी अरब से वापस आ गया हूँ। मैं कभी भी अपने इम्तहानात छोड़ना नहीं चाहता था। स्टूडेंट्स, we have done half translation of unit number 2 in this lecture. In my next video I will teach you next half translation. I hope so you have understood all the points which I have discussed in this video, and I hope so you have understood present perfect tense also. Okay students, don't forget to like, comment, share and subscribe this channel. आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक करना है। एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें वीडियो के नीचे, ताकि मुझे फीडबैक आपका मिलता रहे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर 9th-10th के भी लेक्चर्स अपलोडेड हैं। आपके कोई जानने वाले हों, फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स में हो, कज़न्स हों, या वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने 9th-10th की वीडियो को उनके साथ लाजमी शेयर करना है। और इसके अलावा आप बाकी लेक्चर्स को भी देखकर अपने नॉलेज में इजाफ़ा कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर ग्रामर और टेंसेस के भी लेक्चर्स अपलोड हैं। आपके जानने वाले या कोई कज़न वगैरह हो या फिर कोई फ्रेंड वगैरह हो जिनकी टेंसेस पर ग्रिप ना हो, ग्रामर पर ग्रिप ना हो, वो वीडियो को देखकर बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। सो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून विद मी इन माई नेक्स्ट लेक्चर। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।